Good morning, students. Welcome to your EVS class. We are studying the chapter 3 Eat Well to be Healthy. Yesterday, I have explained about the nutrients and different types of nutrients, in which I have given the examples of carbohydrates, fats, proteins, and vitamins. And today, I will explain the minerals. First of all, you have to understand that what is minerals. Minerals are important component of a food which is necessary for the proper function of the body. It is present in our food in a very less quantity, but it is very essential क्योंकि ये हमारे बॉडी को डेवलप करने में, उसको हेल्दी रखने में और फंक्शन करने में हेल्प करता है. We will see here 2 or 3 types of minerals which we have to study in this chapter. That is iodine, calcium and iron. These all three are example of minerals. Do you know what is iodine? Have you seen the pocket of a salt? You will find there that it is an iodized salt. What is the meaning of iodized salt? That means salt contains the iodine and it helps in proper function of your brain, है ना. आपके ब्रेन को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है. अगर आयोडीन की कमी बॉडी में हो जाए तो एक प्रकार के गले में डिजीज होती है एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड ग्वाइटर, है ना. उसमें क्या होता है कि गले में सूजन हो जाती है. एंड यू नो अबाउट द कैल्शियम. कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम जो है हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना. एंड वेयर वी कैन गेट कैल्शियम, we get calcium from milk and egg. Okay, and what does iron do? Iron helps in making blood, है ना. ब्लड को बनाने में हेल्प करता है. ब्लड में एक प्रकार का प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन आयरन से कंबाइन होकर के ब्लड को फॉर्म करता है. सो कैल्शियम एंड आयरन both are very important for the development of bones and blood. Okay, now let us see the next topic. Your next topic is eating well. What do you understand by eating well? Eating well, that is not means that you eat a lot. बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेना, this is not a eating well, है ना. Eating well means you have to take such type of food which our body needs. जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसको लेना, है ना. जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उस न्यूट्रिएंट्स को लेना, ये कहलाता है ईटिंग वेल. अगर सभी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड इन ए बैलेंस फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, है ना. अगर सभी चीज़ें जो है खाने में अगर सही मात्रा में अगर हो तो वो बैलेंस्ड डाइट कहलाता है. इसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है. दैट मीन्स अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स a right amount of carbohydrates, a right amount of proteins and right amount of fats, and a balanced diet also contains the right amount of vitamins and minerals also. Okay, I have given a project to you in which you have to make a chart and write the things you ate. जो आप खाते हैं वो लिखना है और आपको ये बताना है कि आप जो खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, उसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट्स, किसमें प्रोटीन्स, किसमें फैट्स या विटामिन्स या मिनरल्स मिलता है. ओके, यू हैव टू डू इट इन अ प्रोजेक्ट एंड मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड सेंड टू मी. ओके, नाउ let us see the next topic, which is deficiency of nutrients. First of all, understand
that what is the meaning of deficiency. The meaning of deficiency means lacking of something. What is the meaning of lacking? Lacking का मतलब होता है किसी चीज का कमी होना, है ना. deficiency का मतलब होता है किसी चीज का कमी होना. यहाँ पर किस चीज का कमी हो रहा है? यहाँ पे कमी हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, है ना. that means the lacking of nutrients, that means lacking of carbohydrates, or maybe lacking of proteins or fats, or maybe vitamins and minerals. That is the deficiency of nutrients. That is, it is not a proper diet, it is not a balanced diet. Do you know, due to deficiency of nutrients many diseases takes place. बहुत सारी बीमारियां होती है अगर सही न्यूट्रिशन अगर नहीं लिया जाए तो. lack of food. A growing child depends upon the mother's milk, है ना. जो बच्चे इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, वे अपने सिर्फ मदर्स मिल्क पर वो सरवाइव करते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको उसके बाद बाहर से भी फूड देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मदर्स मिल्क में से सभी चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती हैं जो कि बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है. ये जानकर के बहुत ही दुख होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल सही रूप से खाना नहीं खाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है. दिस इज़ रियली ए वेरी बैड थिंग्स. बहुत ही बुरा और बहुत ही दुखद बात है ये. इसलिए खाना कभी भी आप लोग वेस्ट ना करें. आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना लेते हैं वो खाना आप पूरा खाइए. खाना कभी भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस भारत देश में नहीं पूरे संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना खाए कितनी रातें गुजार देते हैं. तो इसलिए खाना कभी भी वेस्ट ना करें आप. डू यू नो, व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट eat properly their body lacks with proteins, carbohydrates and fats, है ना. उनके शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की कमी हो जाती है. और इसकी कमी होने से क्या होगा? दे विल बिकम वेरी वीक. बहुत ही वो कमज़ोर हो जाएंगे, है ना. उनका बॉडी ऐसा लगेगा कि वो ओल्ड पीपल हो गए हैं. उनका स्किन जो है वो झूलता हुआ रहेगा, है ना. अगर वो सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं तो उनका डाइजेशन भी वीक हो जाता है और इसलिए वो अपना खाना को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. उनके जो बोन्स होते हैं वो बाहर की ओर दिखाई देने लगते हैं, है ना. और एडल्ट्स अगर हैं, एडल्ट्स का मतलब होता है जो युवक है, जवान है, अगर वो सही तरीके से अपना फूड को नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से तो उनका बॉडी वीक हो जाता है. उनके बाल झड़ने लगते हैं और वो बहुत ही जल्दी वो बीमार पड़ने लगते हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है. मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है जो ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, जो बच्चे बढ़ रहे हैं खास करके आपकी उम्र में, या जो आपसे जो छोटे आपके जो भाई बहन हैं उन लोगों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है. प्रोटीन के कारण आपका बॉडी सही तरीके से ग्रो करता है. अगर सही तरीके से अगर प्रोटीन नहीं मिले तो क्या होगा? द स्टमक गेट्स स्वेलन एंड हेयर बिकम रेडिश. रेडिश का मतलब होता है लाल जैसा हो जाता है ना. हमारा बाल किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना. प्रोटीन की कमी से जो है स्टमक में स्वेलिंग हो जाता है और हेयर जो है वो रेडिश हो जाते हैं. उनके स्किन पर आपको पैचेस दिखाई देगा, है ना. जिनके शरीर में प्रोटीन्स की कमी होती है उनके स्किन पर पैचेस आपको मिलेगा, धब्बा धब्बा मिलेगा. उनके बाल जो है वो बहुत ही जल्दी झड़ने लगते हैं, है ना. उनका स्टमक जो है वो वीक हो जाता है. कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो खाना जो है जल्दी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा. ओके, next see the next topic, that is vitamin A deficiency. That means those persons who suffers from the vitamin A deficiency. Those persons who are suffering from deficiency of vitamin A, they become night blindness. That means in नाइट दे कैन नॉट सी प्रॉपरली. उनको रात में जो है सही तरीके से दिखाई नहीं देता है. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है
रतौंधी है ना, रतौंधी कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब रात के समय वो अंधा हो जाता है, रात के समय में उसको दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए कौन से फूड्स में ज़्यादा मिलते हैं? वैसे फूड जिनका कलर येलो एंड ऑरेंज आपको दिखाई देता है, उन सभी में जो है विटामिन ए जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैरोट्स में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें जो कैरेटीन होती है डैट इज़ विटामिन ए, है ना, सबसे ज़्यादा कैरोट्स में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पपायाज एंड मैंगोज में भी मिलता है। मिल्क, बटर, एग्स एंड लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए मिलते हैं। यू शुड टेक लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क, बटर एंड एग्स। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से लेते रहेंगे तो आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपका आँख जो है वो स्वस्थ रहेगा, है ना। फॉर ए हेल्दी आई यू शुड टेक अ विटामिन ए इन proper way. Okay, next we will see the next topic, that is vitamin B deficiency, vitamin C deficiency, vitamin D deficiency and iron deficiency. Okay, what you have to do, you have to make this project. Okay, thank you.